Hello bachcho, let's read the question. The question says match the column 1 with column 2. In column 1 we have given in A 20% weight by weight solution of KOH, density of solution 1.02 gram per ml. In B we have given solution containing 954.6 gram of CaCl2 in 1 liter. In C we have given volume of 1.204 into 10 to the power 24 molecules of water at 4 degrees centigrade. In D we have given volume of 0.2 m NaOH solution containing 40 milligram of NaOH. In column 2 we have given P as 8.6, Q as 3.64 m, R as 5 ml and S as 36 ml. In option 1, A is matching with Q, B is matching with P, C is matching with S, D is matching with R. Option 2 says A is matching with Q, B is matching with R, C is matching with P, D is matching with S. Option 3 says A is matching with S, B is matching with P, C is matching with R, D is matching with Q. And option 4 says A is matching with P, B is matching with R, C is matching with S and D is matching with Q. First of all, let us check the key concept of the question. The key concepts of these questions are, one is molarity and another is mole concept. So if we talk about molarity, so molarity has the formula moles of solute divided by volume of solution in liters. So that means molarity tells us about the amount of or moles of solute present in 1 liter of solution. Now let's check the complete solution of the question. So if we talk about A, in A we have given 20% weight by weight solution. तो 20% weight by weight solution of KOH का मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम of KOH present in 100 ग्राम of solution. टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम हमारे KOH के हैं. यहाँ पे हमें दो चीज आ गई हमारे पास, एक तो है मास ऑफ सोल्यूट जो कि 20 ग्राम है और एक मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 ग्राम है. लेकिन हमें चाहिए फॉर मोलैरिटी कैलकुलेशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स निकालने होते हैं बाय द फॉर्मूला गिवन मास, जो भी मास हमने लिया है वो डिवाइडेड बाय मोलर मास. अगर हम गिवन मास की बात करें तो वो 20 है, और मोलर मास अगर KOH की बात करें तो वो हो जाएगा K का मास दैट इज 39 प्लस O यानी 16 प्लस 1 दैट मीन्स हाइड्रोजन का मास. तो ये हो गया 56. तो हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 20/56. नेक्स्ट इज हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है मास बाय डेंसिटी, और हमें मास भी मतलब मिल गया है 100 और डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1.02 ग्राम पर ml. तो यहाँ पे जो हमें हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा ml में. अगर अब हम मोलैरिटी निकालें KOH की तो वो हो जाएगी 20/56 डिवाइडेड बाय 100 1.02, और यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमने ml में लिया है ना कि लीटर्स में. ये कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 3.64 m. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो A इज मैचिंग विथ Q. नेक्स्ट हमें दिया है सॉल्यूशन कंटेनिंग, बी में हमें दिया है सॉल्यूशन कंटेनिंग 954.6 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन. यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का डायरेक्टली दे दिया है और मास भी हमें डायरेक्टली दे दिया है. मोल्स ऑफ CaCl2 हम निकालेंगे, मास विच इज 955.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCl2 वो हो जाएगा 40 प्लस 35.5 into 2 because 40 is the mass of calcium and क्लोरीन का होता है 35.5. तो ये आएगा 111. सो 954.6 डिवाइडेड बाय 111 कैलकुलेट करने पे ये आएगा 8.6 मोल्स. तो मोलैरिटी अगर हम इसकी निकालें तो मोलैरिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ CaCl2 जो कि है 8.6
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स विच इज गिवन 1, तो 8.6 m इसकी मोलैरिटी हो जाएगी. सो हम कह सकते हैं B इज मैचिंग विद P. If we talk about C, in C we have been asked the volume of water at 4 degrees centigrade which contains 1.204 into 10 to the power 24 molecules. So if we talk about mole concept, according to mole concept, the 1 mole of any molecule has 6.023 into 10 to the power 23 molecules. That means we can say that 1.204 into 10 to the power 24 molecules will be equivalent to divided by 6.023 into 10 to the power 23, जो कि कैलकुलेट करने पे आएगा इक्वल टू 2, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर हो गए ये. 1 मोल ऑफ वाटर हैज मास इक्वल टू 18 ग्राम. तो 2 मोल ऑफ वाटर का क्या मास हो जाएगा? 2 मोल ऑफ वाटर का मास हो जाएगा 18 इंटू 2, दैट मीन्स 36 ग्राम. ये आया है हमारे पास मास, लेकिन हमें निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बाय डेंसिटी. अब हमें यहाँ पे बताया है कि जो वाटर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और फॉर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होती है 1 ग्राम पर ml. तो वॉल्यूम हमारा निकलेगा 36 ग्राम बाय 1 ग्राम पर ml. तो ये आ जाएगा 36 ml. तो हम कह सकते हैं दैट C इज मैचिंग विद S. नेक्स्ट में हमें D में दिया है 0.2 m NaOH, और उसका जो मास है वो है 40 मिलीग्राम, और हमें वॉल्यूम पूछा है. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, मोल्स. तो मोल्स को हम मास बाय मोलर मास भी कह सकते हैं. ये फॉर्मूला भी हम पहले देख चुके हैं इस क्वेश्चन में. तो ये हो गए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और अगर हम ml में ले रहे हैं तो यहाँ पे 1000 आएगा. तो अगर हम वॉल्यूम ml में निकालनी हो तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. तो मास हमें दिया है 40 मिलीग्राम, यानी 40 इंटू 10 टू द पावर -3, और NaOH का अगर हम मोलर मास देखें तो वो होगा 23 Na के लिए, प्लस 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 16 फॉर ऑक्सीजन, जो कि हो जाएगा 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.2. मोलैरिटी हमें दी हुई है. तो 40 बाय 40 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. 1 बाय 0.2 हमारे पास बचेगा, यानी कि 5 ml. तो D इज मैचिंग विद R. तो हमारी करेक्ट मैचिंग क्या हो गई? Q, P, S एंड R. सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1. Hope you understood the solution well. Thank you.